Is Vastu an important point? क्या है वास्तु? So do you think Ayodhya right now is a good market? What are the few of prime areas where investors or buyers, consider investing or buying in those areas? सर अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाई करनी है जिसका प्राइस आपको अगले 5 साल में डबल हो जाए, तो मिसकंसेप्शन है कि वो चीज़ मुझे अगर मैं चैनल पार्टनर से गया तो मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मेरे लिए प्रॉपर्टी हो जाएगी महंगी। क्या मुझे रेंट करना चाहिए, क्या मुझे बाई करना चाहिए? ये जो आपका सवाल है उसका जवाब ऑफ कोर्स विल बी क्वाइट स्क्यूड. In today's podcast, we have Tahir Gadiali, who is a country head at Bank A Properties, which is into real estate. आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि मुंबई कैसे इवॉल्व हुआ, also which are hot properties across India, and at the same time, we also understood what are the misconceptions that buyer has towards real estate brokers or channel partners. और we got to know a lot of insights कि वास्तु क्या रोल प्ले करता है while buying a real estate. If you want such more valuable insights, please subscribe to our channel. Enjoy the show. So Tahir, before we start, just wanted to know that how you got introduced to Banky. What is your current role at Banky? So Bank A as an organization, so we are a boutique real estate company. We started in the year 2013 back in Dubai. So of course it was a humble beginning. So I was in Dubai back then. I got introduced to my owner, Mr. Porush Junjunwala. So he takes care of the operations there in Dubai. And he was looking to set up his operations here in India. Okay. So we have 2 offices here now, Bombay. I set up the Mumbai operations here, and my role here is heading both the offices, the BKC office as well as the Thane office. You started in Mumbai. तो Mumbai has evolved over a period of time. उसका evolution काफ़ी ज़्यादा हद तक different रहा है. So what is your take on it? How you see Mumbai evolved from where it was and अभी जो है Mumbai? So see, in terms of real estate, Mumbai, of course, being Mumbai and the financial capital of India, the opportunity of real estate in Mumbai is immense. And with now so many projects, government-oriented projects to make Mumbai, say, into the financial hub of, say, maybe even Asia, there has been a lot of investment which is going on behind the scenes. Of course, you must be aware of the Mumbai Metro and the Trans Harbour Sea Link, and now the Sea Link being extended to now the phase 2 and the phase 3 being extended to, say, maybe Borivali and going ahead to Nalasopara and Virar. I think the infrastructure of Mumbai will evolve in the next 5, 6 years, 7 years. And of course, then you'll have the metro as well. Mumbai will be fully metro connected in the next 4, 5 years. So, of course, the population of Mumbai is increasing. The core city Mumbai population is increasing by 1.5%, 2% year on year. And we see Mumbai being close to a 24 million kind of a population by 2030. Okay. And so Mumbai as a market for home buyers will do well with the connectivity coming into the equation and the metro line starting. Okay. You will see a lot of traffic time being cut down. You will also see a lot of people commuting more freely to their workspaces. Okay. And then, of course, being an expat-driven city, the inflow of expats is going to be pretty much the same. In the current situation, as of today, what are the few of prime areas where investors or buyers, should consider investing or buying in those areas according to you? See, we as a company also, we are going very hard on an area called as Navi Mumbai. Okay. Our plan for Navi Mumbai is huge. The only reason being is now we can see the airport coming. So, Navi Mumbai की जो airport की story भी है ना, हाँ. वो last 12-13 साल से चल रही है, ठीक है? But now, in the last 4-5 years, the work has really picked up. Okay. And now you will even see maybe commercial flights taking off in the next 2 or 3 odd years. Okay. So anything which is, and Navi Mumbai is not Mumbai. It's on the outskirts. It's a new city. जैसे थाने एक नया city है, वैसे of course Navi Mumbai भी एक नया city है. So आज की date में whenever I meet investors, whenever I meet clients who are looking as real estate as a core investment product, जिनको रहना नहीं है, so I suggest them Navi Mumbai. Navi Mumbai. है ना? So Navi Mumbai being one area to answer your question, and another area is यार आप कोई भी area ले लीजिए जो
आप थोड़ा बेसिक रिसर्च कीजिए, जहाँ पे आपके घर से मेट्रो लाइन 2, 3, 4, 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, Okay. आप वहाँ पे पैसा डाल दीजिए। 3-4 साल बाद, 5 साल बाद जब सारी मुंबई की 6 मेट्रो लाइन कनेक्ट हो जाएगी, हाँ. ट्रैवलिंग विल बी सो कन्वीनियंट कि अगर आपको 2 मेट्रो बदल के भी घर पहुंचना है तो भी आप 1 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे। Yeah, that. आप मुंबई के किसी भी कोने में काम कर रहे हो। Hmm. सो मेक श्योर एज अ होम बायर, इफ यू आर परचेसिंग अ प्रॉपर्टी जहाँ पे आपको रहना है, हाँ. सो परचेस अ प्रॉपर्टी जहाँ से मेट्रो कनेक्टिविटी है। Okay. एंड एज एन इन्वेस्टर, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाई करनी है जिसका प्राइस आपको अगले 5 साल में डबल हो जाए, Okay. देन नवी मुंबई इज योर ऑप्शन। But looking at other aspects also, just not Mumbai. India में growth हो रही है, and we have seen growth coming from such a long time. Countries, world is seeing India as a next big thing. So, apart from Mumbai, which are the other tier 1 or tier 2 cities and who are currently coming up in terms of residential? Investors are putting in their money over there. People prefer going over there. Let's say, for example, Bangalore abhi kafi traffic की वजह से people they want to move out of a Bangalore. They are searching for a new place. हैदराबाद हो गई या tier 2 cities जो है. So what's your take on that? No, see, I believe a lot of tier 2 cities are doing great. If you're asking me from an investment point of view, Yeah. where you can make money, I think Pune. Okay. The only and only reason being is after Bangalore, Pune is the second largest IT hub of India. आप ये बात accept करते हो? Yes. ठीक है। आज की डेट में I know a lot of companies who are shifting their back-end processes to Pune. A lot of MNC players globally want to enter Pune as a market because and only because the commercial rentals in Pune are a little affordable. मैं ये नहीं बोलूँगा सस्ते हैं, but are a little affordable as compared to a metro city like Mumbai Or Bangalore. or Bangalore for that matter, है ना? So and plus Pune of course because of the proximity to Mumbai. Yeah. So a lot of companies will have their HOs in Mumbai. Okay. Their head office is in Mumbai. I know a lot of companies, they have their head office in Mumbai, but they have the working office, which is a larger office space in Pune. Yeah. So for if say a C-level executive, a CEO, maybe a CMO or a CBO wants to go to Pune, then Pune is just 3 hours away. Yeah. With now the new Atal Setu also coming into the equation. Yes. So if I stay in South Bombay, so for me, if I want from South Bombay, if I want to travel to Pune, first it used to take me 4.5 hours. Now it takes me only 3 hours flat. Okay. है ना? So Pune is a good option. And Okay. plus the rental yields in Pune are also high. Okay. Because again, Pune, like Mumbai, is an expat-driven market. You have people from across India coming to Pune, being the IT hub, to do a job there. And of course, आपको ये मालूम है यार, when you get into a new job, you do not go directly and purchase a property. जब तक आप वो सिटी में, हाँ, जब तक आप वो सिटी में सेट नहीं हो जाते, तो जब तक आप वो सिटी में सेट नहीं हो जाते हो, आपको रेंट पे रहना है. एंड रेंट पे रहना है और आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की है तो आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ेगी. हाँ. एंड इफ यू आर टेकिंग अ प्रॉपर्टी नियर से मे बी द IT हब और द जो है हिंजेवाड़ी फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपका फ्लैट कभी भी वेकेंट नहीं रहेगा. Yeah. There are so many small companies who have set up their operations who are giving their 10-10, 15-15, 20-20 फ्लैट खरीद लिए हैं या 10-10, 15-15, 20-20 फ्लैट रेंट पे ले लिए हैं एंड वो शॉर्ट टर्म रेंटल्स पे देते हैं. Yeah. So you have say delegates from outside India who want to come and visit the Pune office maybe. Yes. अगर उनकी ऑफिस पुणे में है, so 10 दिन के लिए रहना है, 15 दिन के लिए रहना है, homely atmosphere चाहिए. They do not want to stay in a 4-star, 5-star property because again 4-star, 5-star properties are expensive. Yeah. So these companies then they end up taking the flats on short-term rental. Makes So sense. short-term rental is also a great market in Pune. Makes sense. But tier 2 में you see Ayodhya is being considered as a very good opportunity right now for investment. So do you think Ayodhya right now, with the Ram Mandir, everything जो develop हो गया है, is a good market? It's an excellent market. Ayodhya. Ayodhya is an excellent market. Of course, you mentioned the Ram Mandir and of course it was inaugurated 7-8 months ago. What has happened is that for people, for rich buyers who would like to visit Ayodhya as the temple and it's a pilgrim tourism. Yes. है ना, as a pilgrimage, है ना, तो you see a lot of
rich investors, rich buyers. I know of a certain company in Mumbai, they sell lands in Ayodhya and the land is selling at 8,000, 9,000, 10,000 PSF. आज के प्लस उस पर आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका आज के डेट में एक मुंबई के आउटस्कर्ट्स पे जो 18-20 हज़ार रुपये के आउटस्कर्ट्स नहीं बोलूँगा पर जो मुंबई के सिटी लिमिट में है या थाने का जो आज के डेट में एक एवरेज प्राइसिंग चल रहा है ना 18-20 हज़ार रुपये में फ्लैट मिलता है, अयोध्या में 8, 8.5, 9 हज़ार रुपये की लैंड मिल रही है ना, उस पर्टिकुलर डेवलपर की, उस पर 6-7 हज़ार रुपये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, 16-17 हज़ार रुपये के भाव में PSF पर स्क्वायर फीट रेट में अयोध्या बिक रहा है। ओके, वो रेट में आज थाने भी बिक रहा था 4 साल पहले, 5 साल पहले, आज थाने 20-22 हज़ार के भाव में भी बिक रहा है एवरेज, ओके, है ना। सो दैट इज द ग्रोथ दैट अयोध्या हैज सीन आफ्टर द राम मंदिर हैज inaugurated. Yes. For investors, who will be watching our podcast and who will be considering investing in India right now, as per our discussion, I think Ayodhya seems to be a very good bet. Oh, it's a very good bet, Ayodhya, and in the next, and how UP as a whole state is evolving. Yes. है ना, right from say Prayagraj to Ayodhya to maybe the outskirts of Lucknow as well. है ना, there's a lot of things happening in Lucknow, and of course Noida being Noida, you must be aware of the Delhi NCR corridor and how Noida is a part, an integral part of the Delhi NCR corridor, and of course Noida falls in Uttar Pradesh, and the government in Uttar Pradesh is doing really well. Okay. The rules, the regulations, and the openness Yeah. towards a lot of industries. Of course, there are news of similar Mumbai kind of an Bollywood setup being set up in Noida as well, which is going to be 3 times larger than the Mumbai film city. Yeah. है ना? So, of course, you will in the next 10-15 years see UP as a state and Ayodhya as a city emerge. So coming to your industry, coming to your work that you do, I just wanted to know that from a buyer's point of view, when they come to a channel partner or they start looking for a house, उन लोग जनरली एक मिसकंसेप्शन है या तो आप कह लो कि एक मिथ है कि अगर मैं कोई चैनल पार्टनर या तो किसी ब्रोकर से मैं डील करता हूँ, करेक्ट, तो उनका एक कमीशन, बट वो मिसकंसेप्शन है कि वो चीज़ मुझे अगर मैं चैनल पार्टनर से गया तो वो मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मेरे लिए प्रॉपर्टी हो जाएगी महंगी। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो जोसेफा, पहले तो आपको ये समझना होगा कि रियल एस्टेट में मेजरली 2 तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं या 2 तरीके की मार्केट होती है। हाँ। पहला होता है प्राइमरी मार्केट, ओके, जहाँ पे बिल्डिंग बनी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और आप डेवलपर का माल बेच रहे हो। ओके। और दूसरा ट्रांजैक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड अ सेकेंडरी ट्रांजैक्शन, जहाँ पे बिल्डिंग बन गई है, 10-15 साल 20 साल पुरानी बिल्डिंग है, और 10-15-20 साल पुरानी बिल्डिंग में आपको वो एक रीसेल इन्वेंट्री मिल जाती है बायर को। यस। अब ये दोनों के सिनेरियो में आपको समझाता हूँ होता क्या है। मान लीजिए इफ इट्स अ प्राइमरी ट्रांजैक्शन, जो कि आज के डेट में 50-60% ट्रांजैक्शंस विच आर हैपनिंग इन मुंबई आर प्राइमरी ट्रांजैक्शंस ओनली एंड ओनली बिकॉज जो बायर होता है उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, 2 साल के लिए पैसा जमा करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, पेमेंट टर्म्स मिल जाती है। उस केस में एज अ चैनल पार्टनर व्हेन वी कम इनटू द इक्वेशन, ओके, वी डू नॉट चार्ज द बायर एनीथिंग। ओके, व्हाटएवर वी मेक डायरेक्टली फ्रॉम द डेवलपर। ओके। अब उसके पीछे का आप लॉजिक और साइंस समझिए कि आज एक मान लीजिए कि आप एक बायर हो, ठीक है, आपने एक XYZ प्रॉपर्टी में जाके इन्वेस्ट करना है आपको, और 2 साल बाद आपको प्रॉपर्टी का हैंडओवर मिलने वाला है, ठीक है। आप वहाँ पे जाओगे, आप एज अ मिडिल क्लास इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान पूरे अपनी लाइफ में एक ही बार घर खरीदता है। यस, करेक्ट है। तो आज आप उस प्रोजेक्ट में आपका शायद पहला और आखिरी घर खरीदोगे। यस, ठीक है। Whereas we as channel partners work with that particular developer and we are working in that market for the last 5, 10, 15, 20 years. So we know what the base pricing of that project is. आज आप मान लीजिए कि एक डेवलपर ने आपको 2 करोड़ का रेट दे दिया, ओके, और आप टेबल पे गए, डायरेक्ट गए, आप कोई चैनल पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट गए और आप बोलते हो कि भाई मुझे ये घर 1 करोड़ 80 लाख में चाहिए। ओके, डेवलपर आपको 1 करोड़ 80 लाख में क्लोज भी कर देता है। ओके, यू आर हैप्पी, यू विल थिंक यार 2 करोड़ का घर था, आई गॉट अ वेरी गुड डील, मैं चैनल पार्टनर को भी बीच में नहीं लेके आया और मेरा 20 लाख रुपया भी बच गया और मैं 1 करोड़ 80 लाख रुपया बॉटम मिल गया मुझे और मैंने 1 करोड़ 80 लाख रुपया में घर खरीद लिया। ओके, बराबर, ये नॉर्मल बायर की साइकी है। ओके।
But as a one-time buyer who's going to purchase only one inventory in the whole building, जहाँ पे 350, 400, 500 इन्वेंट्री है, ओके क्या आपको मालूम है कि 180 के नीचे का भी रेट था? ये नहीं पता. अगर आपको पता होता तो आप शायद 180 में खरीदते ही नहीं, 1 करोड़ 80 लाख रुपए में. ठीक है, दैट इज वेयर द चैनल पार्टनर कम्स इनटू इक्वेशन. ओके आज मैंने वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और वो पर्टिकुलर मार्केट में पूरे महीने में 5 फ्लैट बेचे हैं. ओके वो पर्टिकुलर कारपेट एरिया, 800 का कारपेट एरिया, मुझे मालूम है कि 180 में नहीं, वो 170 में भी मिलता था आपको. ओके और मैं आपके लिए वो नेगोशिएट करता, मैं आपके लिए डेवलपर से आपको बॉटम रेट ला के देता और आपसे 1 रुपया भी लेता नहीं. ओके तो यहाँ पे हुज लूजिंग एंड हुज विनिंग? मेक So, सेंस. as a buyer, if you think that यार मेरा तो एक्स्ट्रा 2%, यार डेवलपर हमें 2% देता है, कभी कभी 2.5% भी देता है, बट वो 2 और 2.5% हमें डेवलपर से मिलता है जस्ट टू नेगोशिएट ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर. ओके So this is a primary transaction. Now coming to the secondary transaction, which is another 40-50% of the total transactions which are happening in Mumbai right now. ओके अब आप सेकेंडरी ट्रांजैक्शन में भी वही लॉजिक लगा लीजिए. अब आपने वो बिल्डिंग, आपको एक बिल्डिंग पसंद आ गई, 7 माले की बिल्डिंग है, वहाँ पे एक ही यूनिट अवेलेबल है, आपको वो यूनिट पसंद आ गई. Okay. आपने 5, 10 लाख, 15 लाख रुपए का सस्ते का कोट दे दिया और आपने वो घर खरीद लिया, Okay. जस्ट टू अवॉइड के चैनल पार्टनर को या ब्रोकर को 1%, 2% जो भी उनका हक का पैसा है वो ना देना पड़े. ओके वो आपको लगेगा कि यार हाँ ठीक है यार, 2 करोड़ के ट्रांजैक्शन में मेरा तो 3.5-4 लाख रुपया बच रहा है. ओके ठीक है, दैट इज द नॉर्मल साइकी ऑफ अ बायर. ओके नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट शायद उस एरिया का मार्केट नॉलेज, नो हाउ आपको होगा, ओके बट मेरे से ज़्यादा नहीं होगा, मेक सेंस. या है ना? बिकॉज secondary transactions also, of course, in the secondary transaction the buyer has to pay the channel partner, because there is no developer involved here. तो मेरे पास तो सिर्फ सेलर है और बायर है, तो या तो मुझे सेलर से पैसा लेना है या बायर से लेना है या दोनों से मिला के लेना है, ओके है ना? तो इस केस में क्या होता है ना कि आप ऐसे केस में भी 5-10 लाख रुपए महंगे में ही खरीद लोगे, बिकॉज मुझे मालूम है कि उसके बाजू की बिल्डिंग में 2 महीने पहले 180 में माल बिका है, ओके सेम कारपेट एरिया, और यही बिल्डिंग में 6 महीने पहले एक और फ्लैट बिका था, आपके नीचे वाला, आपके ऊपर वाला, आपके बाजू वाला 170 में, और आप वही फ्लैट 190 में खरीद लेते हो. ओके सो इस केस में भी द बायर स्टैंड्स टू लूज आउट. वो 4 लाख बचाने के चक्कर में उनका 10 लाख छूट जाता है. Makes sense, yeah. So, in terms of, yeah, you rightly, explained. And more than money they save, or of course, I'm sorry to cut you, but more than saving the money, they even save on time. आज आप, because of the market knowledge that I have, or the channel partner, or anyone in my company, or XYZ channel partner has, is based on your requirement, based on your vastu, based on whatever you need. Maybe you don't need a swimming pool, maybe you need a clubhouse. Based on that, I will give you the top 5 properties on the basis of your requirement. Okay. तो आज आपको एक 15-20 प्रॉपर्टी घूमने की जरूरत ही नहीं है. आपका रिक्वायरमेंट मुझे बता दीजिए, मैं आपको टॉप 5 प्रॉपर्टी लेके आऊंगा जो आपके बजट में मैच होगी, Okay. और आपको वही 5 प्रॉपर्टी में से एक दिलवा देंगे. Okay. So I think not only price but also value भी आती है इन channel partner से deal करने और having them in between. Right now how the deals are structured from the developer, कि developer बोलता है कि मैं आपको ये फ्लैट फॉर एग्जाम्पल 4 करोड़ ऑल इन दे दूंगा. अभी वो ऑल इन में बहुत सारे ऑफकोर्स स्टार मार्क रहता है, काफ़ी सारा टर्म्स कंडीशन रहता है, बट अभी ये काफ़ी टर्म इट्स कमिंग अप इज दैट हिडन कॉस्ट, कि सब बोलते हैं यार हिडन कॉस्ट है, ये हिडन कॉस्ट है, वो हिडन कॉस्ट है. तो कैन यू जस्ट हेल्प अस कि एक्चुअली हिडन कॉस्ट होता क्या है, व्हाट डू यू कंसिडर एज अ हिडन कॉस्ट, और ऑल इन में क्या आता है? ऐसा कोई हिडन कॉस्ट नहीं होता है. सी, देयर इज नो वन क्लियर आंसर to this question. Every developer has a different set of line items which they put in their cost sheet. Yeah. Aaj, after RERA has come into the picture after 2017, the real estate transactions in India, or say maybe Maharashtra, RERA was launched in 2017, the real estate transactions in Maharashtra and Mumbai have been crystal clear. Okay. है ना? आज अगर यू आर अ बायर एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे ये ऑल इन स्टार मार्क में क्या चीज़ आती है, आप ट्रांजैक्शन देने से पहले यू हैव ऑल द राइट्स टू टेल, और डेवलपर को खुद, डेवलपर आपको आपके कॉस्ट शीट आपके सामने रख देगा, जहाँ पे आपका बेस प्राइस लिखा होगा,
उसके अंदर जीएसटी कितना बन रहा है वो लिखा होगा, उसके अंदर ऑल इन प्राइस है तो ऑफकोर्स स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन है वो डेवलपर पे कर रहा होगा तो डेवलपर का स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की कॉस्टिंग लिखी होगी, उसके अंदर अगर क्लब हाउस डेवलपर बना रहा है तो क्लब हाउस चार्जेस लिखा होगा, अगर डेवलपर 1 से 1.5 साल 2 साल का मेंटेनेंस ले रहा है तो 2 साल का मेंटेनेंस चार्जेस भी उसमें मेंशनड होगा। और ये सारे लाइन आइटम्स को ऐड करते 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 वो 4 करोड़ का ऑल इन प्राइस बैठता है, जो कि आपका सवाल था कि ऑल इन में क्या क्या आता है। ओके तो ये पूरा 4 करोड़ का ऑल इन का आपको कैलकुलेशन मिलेगा। ओके नाउ इफ यू वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड कि भाई मेरे फ्लैट का बेसिक कॉस्ट क्या है, तो आप अग्रीमेंट वैल्यू देख लीजिए, ये मेरा बेसिक कॉस्ट है, इसमें ये ऐड हो गया, इसमें ये ऐड हो गया, इसमें ये ऐड हो गया, मिला के 4 करोड़ हो गया। इनफैक्ट यू नो रेरा के आने के बाद आई थिंक रियल एस्टेट मार्केट हैज़ बीन पॉजिटिवली इम्पैक्टेड फॉर द बायर्स। डू यू फील द सेम कि पहले ऐसा था कि फ्रॉड काफ़ी होते थे, डेवलपर्स भी प्रोमिस कर रहे डिलीवर नहीं कर रहे, बट रेरा के आने के बाद यू नो दीज थिंग्स हैव रिड्यूस्ड? हाँ ऑफ कोर्स एज यू राइटली सेड, रेरा आने के बाद काफ़ी चीज़ें पॉजिटिवली चेंज हुई है। पहले क्या था ना, रेरा आने से पहले देयर वाज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी इन द बायर, एंड पहले का मार्केट भी अलग था। इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स दे विल टेल यू कि पहले जो रियल एस्टेट परचेजेस होते थे ना वो सेंटिमेंटल और इमोशनल परचेजेस होते थे, ओके है ना। पहले कोई ये नहीं चेक किया जाता था कि भाई ये लैंड का टाइटल क्लियर है कि नहीं, पहले कोई ये चेक नहीं करता था कि ये लैंड के ऊपर डेवलपर ने कितनी लोन ली है, ओके पहले कोई ये चेक नहीं करता था कि यार अगर ये लैंड है तो इसके अंदर कितने पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं। ओके सेंटिमेंटल रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन ऐसे होते थे कि भाई किसी ने आपके फादर को आके आपके मदर को आके बोल दिया कि यार मैंने वो बिल्डिंग में घर लिया है, तू मेरा नेबर है, लास्ट 20 साल से एक काम कर, तू भी मेरे बाजू में आ जा। हाँ तो वो भी फंस जाते थे और आपके फादर भी फंस जाते थे, ठीक है ना। बट नाउ आफ्टर रेरा व्हाट हैज हैपेंड इज थिंग्स हैव बिकम अ लिटिल मोर स्ट्रीमलाइंड। ओके अब वो स्ट्रीमलाइंड का मतलब वो ये हो गया है कि स्ट्रीमलाइंड का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। ओके आज यू ओपन द महारेरा वेबसाइट, महारेरा की वेबसाइट आप खोलिए, ओके you will write from the land to when the land was acquired to what is the amount of loan on the land to the blueprint of the land to maybe the floor plan of the land और layout क्या है, बिल्डिंग बनने के बाद बिल्डिंग के अंदर का लेआउट क्या है, उसकी रेरा पोजेशन डेट क्या है, वो सारी चीज आपको यू विल गेट इट ऑन वन क्लिक, सब मिल जाएगा, है ना। सो दैट इज हाउ द मार्केट हैज इवॉल्व्ड आफ्टर रेरा कमिंग इनटू द इक्वेशन है। जैसे वन मोर पॉइंट, यू नो एज यू राइटली सेड कि पहले जब ही रेरा भी नहीं था और सोशल मीडिया भी नहीं था, लोग रेफरेंस से जाते थे, कभी वॉचमैन से पूछते थे, कभी सब्जी वाले से पूछ लेते थे या मुझे घर चाहिए, कुछ बता कुछ बता। भी सोशल मीडिया काफ़ी आ गया है, यू नो। सो हाउ डू यू थिंक, यू नो, सोशल मीडिया के आने से जो रियल एस्टेट का लैंडस्केप है पूरा शिफ्ट हुआ है? So, this is a very interesting question. After social media, what has happened is, as channel partner, I will give you my perception. कि whatever, see, I have been into real estate since 2010. It's been 14 years. ओके तो मैं तब से रियल एस्टेट देख रहा हूँ जब इंस्टाग्राम नहीं था, ओके है ना, या फेसबुक जस्ट स्टार्ट हुआ था। और जब फेसबुक स्टार्ट हुआ तब फेसबुक का कोई मार्केटिंग टूल भी नहीं था। आई थिंक फेसबुक मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग 2015, 16, 17 के बाद आया। आई थिंक पोस्ट कोविड ज़्यादा प्रोमिनेंस में आई है। यस तो तब क्या होता था ना कि पूरा का पूरा 80%, 90%, 100% बिजनेस वुड ओनली रन ऑन रेफरेंसिंग। यस मैं इट वाज अ सर्विस ड्रिवन इंडस्ट्री। यस मैंने किसी को सर्विस अच्छी दी है 10 साल पहले, तो 10 साल बाद उसका बेटा वापस मेरे पास आएगा बोल के कि अरे आपने मेरे फादर को घर दिलवाया था, 10 साल बाद अभी मुझे बड़े घर में अपग्रेड करना है या किसी और एरिया में घर चाहिए तो आप मुझे दिलवा के दे सकते हो। ओके बट सोशल मीडिया आने के बाद ये सारी चीज़ें चेंज हो गई है। 70%, and I would like to quote, 70% of the business that Banke does ओके in Mumbai ओके are through my social media leads. Be it my Google PPC leads, be it my Meta leads, and the percentage is increasing. ओके जो लास्ट ईयर शायद मैं 60-65% पे था, आज मैं 70-75% पे बैठा हूँ, जहाँ पे मेरी डील ही फेसबुक और कोई भी मेटा सोर्स से या गूगल पीपीसी से हो रही है। बाकी की 15-20-25% जो डील्स है, या तो वो तो क्रॉस में हो जाती है, या तो रेफरेंसिंग से हो जाती है, या तो यहाँ पे एक वो फेमस कॉन्सेप्ट है रियल एस्टेट में, काफ़ी चैनल पार्टनर्स फॉलो करते हैं, जहाँ पे
वो एक कोल्ड कॉलिंग होती है, ओके जहाँ पे आपके पास अगर लीड इनफ्लो इतना नहीं है तो आपने किसी को बिठा दिया, वो कोल्ड कॉलिंग कर रहा है, तो 25% लीड डील्स वैसे होती है, बाकी 75% डील्स फ्रेश लीड से होती है. Yeah. सो दिस इज द इम्पैक्ट दैट सोशल मीडिया हैज हैड ऑन द बिजनेस इन ऑन रियल एस्टेट. Also, there are a lot of social media influencers, real estate influencers that have, in recent years come up and they are doing aflatun. जबरदस्त, जोरदार. जोरदार कर रहे हैं उन लोग मार्केट में. हम्म. तो ये एक स्ट्रैटेजी सबके लिए है. आप ये सजेस्ट करते हो कि चल गई उनके लिए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दे आर डूइंग वेल. सो डू यू सजेस्ट कि अगर किसको एंटर करना है तो ये स्ट्रैटेजी यूज करें? स्ट्रैटेजी इज वेरी सब्जेक्टिव. स्ट्रैटेजी क्या है? जो चल गया वो स्ट्रैटेजी, जो नहीं चला वो नहीं है स्ट्रैटेजी, है ना. आज अगर 1000 इन्फ्लुएंसर्स 1000 रील बना रहे हैं दिन की, हाँ तो उसमें से 1 या 2 रील चलती है, 5 रील चलती है या 10 रील चलती होगी, हाँ है ना. तो जो 10 लोगों के लिए रील चल गई या उनका पेज चल पड़ा तो उनकी स्ट्रैटेजी सही है. जिनका नहीं चल पड़ा उनकी स्ट्रैटेजी गलत है. कर तो वही सेम काम रहे दोनों. Yes. So here it is not about strategy, here it is about clicking. Okay. Some people get lucky, some people genuinely put, of course, like you mentioned about real estate influencers, so they put a lot of hard work. Efforts, yes. A lot of effort goes in. कभी कभी क्या होता है ना यार कि you need that effort, you need that zeal within you कि भाई रोज डेली बेसिस. ऑफ कोर्स रियल एस्टेट बेचने के अलावा दिन के 3-4 घंटा 5 घंटा रील बनाओ, एडिटिंग में डालो, तो ये सबके बस की बात नहीं है. Yes. एंड ऑफ कोर्स इसमें अगर आप ब्रेक हो जाते हैं, आप समझो 20 दिन में एक रील बनाते हो, फिर 20 दिन तक आपका पेज डेड है. Yeah. फिर वापस 1 महीने में आप किसी महीने सोचोगे यार अभी रील बनानी है, 10 रील डाल दोगे, फिर अगले 3 महीने तक कुछ नहीं बनाओगे. Okay. सो मोर देन द स्ट्रेटेजी इट इज ऑल्सो अबाउट द कंटिन्यूटी. Okay. अगर कंटिन्यूसली डे इन डे आउट वो काम हो रहा है और अगर वो काम पे आप टाइम डिवोट कर पा रहे हो, सो नथिंग लाइक इट, वो चल जाएगा आपके लिए. एज अ बायर आपके पास काफ़ी बायर आते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से व्हाट आर मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस द बायर आस्क, और क्या क्वेश्चन बायर को पूछने चाहिए चैनल पार्टनर डेवलपर से टू अंडरस्टैंड दे आर बाइंग, दे हैव फुल नॉलेज अबाउट इट? देखो बेसिक, अगेन दिस विल टेक मी बैक टू माई रेरा आर्ग्यूमेंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक, कि आज अगर एक बायर इन्फॉर्म्ड बायर है एंड इफ ही इज गेटिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन एट अ पर्टिकुलर डेवलपर XYZ डेवलपर, उसको ज़्यादा सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है. ऑल ही नीड्स इज एन एक्टिव इंटरनेट ऑन हिज फोन. ओके. आप जाइए, रिसर्च कीजिए, रेरा की वेबसाइट ओपन कीजिए, आपको 10 चीज़ें जो डाउट है वो भी आपको मिल जाएंगे, और जो डाउट नहीं थे आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना. सो द फर्स्ट राउंड आफ्टर से मे बी आपने 5 प्रॉपर्टी देखी, 5 में से आपने एक प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट की, एक प्रॉपर्टी के बारे में आप रिसर्च कीजिए, ओके. जॉट डाउन ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस, ओके. जैसे कि इसका पोजेशन टाइमलाइन कब है, ओके. ये डेवलपर की पास्ट हिस्ट्री कैसे रही है, ओके. टाइमली डिलीवरी है या नहीं है. ओके. ये बेसिक 4-5 सवाल होते हैं जो पूछते हैं. अब लोग वो पूछना चालू कर दिया है. पहले पूछते थे पोजेशन डेट कब है, अब लोग पूछना चालू कर देते हैं कि रेरा पोजेशन कब है, ओके. है ना. तो दिस हैज बीन द शिफ्ट इन द थॉट प्रोसेस ऑफ द पोटेंशियल बायर. यस. तो ये बेसिक से 5-6 सवाल है, और बाकी तो आज की डेट में बायर इतना इन्फॉर्म्ड होता है कि आज वो आपको 4 बात बता के जाएगा. आई थिंक सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया, इंटरनेट और इतने सारे वीडियोस जो आते हैं एजुकेशन, आई थिंक इट हैज़ हेल्प, एंड होपफुली आवर वीडियो विल ऑल्सो, आवर पॉडकास्ट विल ऑल्सो हेल्प द बायर्स in Absolutely. terms of understanding when they go and they buy and they know what they are buying. Correct. But very new age question that has come up, and काफ़ी सोशल मीडिया यूट्यूब पे भी काफ़ी वो क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे रेंट करना चाहिए, क्या मुझे बाई करना चाहिए. एंड लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, एक्सेल मॉडल प्रेजेंट करते हैं, दे टेल यू ओके पहले आप 20s में रेंट कर लो, 30s में बाई करो. अपनी फिलोसफी पे कोई बोलता है पहले बाई कर लो, फिर ओवर द पीरियड टाइम रेंट का अपना उसका EMI भर लो, रेंट पे चढ़ाओ. XYZ, that numerous things. What is your say, rent versus buy? See, for me, if you ask me, Josefa, being a real estate guy, है ना, ये जो आपका सवाल है उसका जवाब
of course will be quite skewed in my opinion, because I sell real estate for a living. Yeah. है ना? So for me, if you ask me कि रेंट करना चाहिए, बाय करना चाहिए, मैं आंख बंद करके बोलूँगा बाय करना चाहिए. Okay. अब उसके पीछे के ये पॉडकास्ट के बाद या बहुत सारे आप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे तो वो आपको 10 अलग अलग स्टोरी, 10 अलग अलग कैलकुलेशन बताएंगे कि वाई बाइंग इज नॉट एन ऑप्शन एंड क्यों पहले रेंट करना चाहिए और फिर बाई 5 साल बाद करना चाहिए. अब एक बात समझिए, रियल एस्टेट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट माय फ्रेंड, इट्स एन इमोशन. Okay. है ना? आज लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान. हाँ. तो ऐसा नहीं बोलता रोटी कपड़ा मकान म्यूचुअल फंड्स. क्यों? है ना? तो आज लॉट ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स विल टेल यू यार ये रियल एस्टेट का पैसा है, वो पहले म्यूचुअल फंड में डालो, वो आपको 20% CAGR ग्रोथ देगा, अगले 5 साल में आपका वो ये पैसा फ्री हो जाएगा, उससे बड़ा घर ले लोगे 5-6 साल बाद. Okay. बट आप एक बात समझिए कि इफ यू आर स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस, Yeah. है ना, तो वो क्या घर आपका है? यू आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड टू दैट हाउस. Yeah. है ना? आज आपको पता है 5 साल बाद क्या होने वाला है आपके साथ? नो वन नोज. अगर पैसा है एंड इफ यू वांट दैट सेल्फ ऑफ ओनरशिप, Okay. ना, सेल्फ ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, Okay. है ना, दैट सेल्फ ओनरशिप कि मैं मेरी खुद की कोई चीज़ है जिसमें मैं रह रहा हूँ. Okay. आप कभी भी रेंट के घर को अपना घर नहीं बना सकते हो, है ना? Yeah. वो एक घर तो है बट वो आपका नहीं है. वो इमोशनली यू आर नॉट अटैच्ड टू दैट हाउस. Okay. So for me, I still feel, and how we Indians are, I still feel real estate more than an investment is an emotion. Okay. And people purchase the emotion, not the investment. Our age may be thinking a bit differently, but more or less, our father's age, grandfather's age, उनके लिए कभी renting का इतना बड़ा decision था ही नहीं. They always preferred, buying. Buying the house, yeah. Yeah. They always preferred buying. भले छोटा घर लो, लेकिन घर लो. Correct. वो हमेशा था. But with emotion है, if you know you are here for a long time. Then yeah, buy a house, yeah. Yeah. Always the best option. Yeah, and also from an investor's perspective, what growth over the past few years have real estate given? Say that, real estate is a better investment, not a better investment, but an alternate investment to a lot of mutual fund. What is that 1 or 2 reasons why investors should invest in real estate? So real estate is the only form of, आज के डेट में 3-4 अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, Yeah. है ना? होते तो बहुत ज़्यादा है बट मेजॉरिटी लोग 3-4 अलग अलग चीज़ों में पैसा डालते हैं, है ना? गोल्ड इज़ वन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट वेर यू परचेज, एक समझ लो आपने 10 लाख रुपए का गोल्ड ले लिया, ठीक है? वो 10 लाख रुपए का गोल्ड आपका 12, 13, 14, 15 लाख रुपए का हो जाएगा 5 साल में, ठीक है? दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है कि जैसे म्यूचुअल फंड्स में आपने पैसा डाल दिया, Yeah. जहाँ पे आपने आपका पूरा पैसा लेके आपने एक फंड मैनेजर को सौंप दिया, Yeah. बोला कि ये मेरा हार्ड अर्न मनी है, आप इन्वेस्ट कीजिए और उसमें से मुझे जो भी रिटर्न आएगा, ऑफ कोर्स सेबी रेगुलेटेड गाइडलाइंस एंड ऑल ऑफ दैट, बट जो भी पैसा आएगा आपका वो बढ़ते जाता है, पैसा ग्रो होते जाता है. CAGR Yes. जो परफॉर्मेंस दे रहे म्यूचुअल फंड, उसमें भी आपका एक ही तरह का इनकम सोर्स है. Yeah. अगर आज आपने 10 लाख की चीज़ ली है, वो 12, 13, 14 लाख रुपए की हो जाएगी, हाँ. just like gold. Real estate is the only form of investment where you make 2 kinds of money. First is capital appreciation. Yeah. हो सकता है कि 10 लाख रुपए का घर लिया हो और वो घर 11-12 लाख का हो, म्यूचुअल फंड शायद 14 लाख का हो जाएगा बट घर सिर्फ 12 लाख का होगा. घर विल ओनली इंक्रीज बाय 20%, मे बी म्यूचुअल फंड इज बीटिंग द मार्केट एंड इंक्रीजिंग बाय 40%. But real estate, my friend, also gives you rental income. Yeah. So real estate is the only form of investment where you make capital appreciation plus a rental income. Now I'll tell you why rental income is important. Aaj, when you retire at 60 and you have multiple such properties and when your body is giving in and you can't work, इतना रेंट आ जाएगा कि दाल रोटी तो खा लोगे. Okay. एंड प्लस ऑफ कोर्स वो प्रॉपर्टी आपने शायद 30 साल पहले ली होगी 50 लाख में, आज उसकी वैल्यू भी 1.5 करोड़ होगी. Okay. गिवन द इन्फ्लेशन वो 1.5 करोड़ का कोई लॉजिक वैल्यू नहीं है. द ओनली प्लस पॉइंट इज कि जब तक आप मरते नहीं हो और आपके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे बैठ के रेंटल इनकम खाएंगे वो प्रॉपर्टी में से.
So that is the biggest advantage. When you can't work, your real estate investment will work for you. मेक सेंस ऑन दैट. बट जब भी आप कभी कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो, वेन एवर एज अ बायर यू गो और यू सेल प्रॉपर्टी एज अ चैनल पार्टनर, one point I think that you know people want to know is वास्तु कैसा है मेरे घर का. मैं जो घर ले रहा हूँ मेरे हार्ड एंड मनी से, क्या इसकी एनर्जी, इसका वास्तु वो सही है? तो जब भी क्लाइंट तो बायर्स आपके पास आते हैं, सो इज वास्तु एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड हाउ डू यू एक्सप्लेन अबाउट वास्तु? Josefa, let me just reverse the question and ask you, क्या है वास्तु वास्तु इज आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से वास्तु एक एंशिएंट साइंस है जो यू नो इन इंडिया बहुत सारे ऋषि मुनि ने वो टाइम पे बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, मेरा घर कौन सी साइड पे होना चाहिए और मेरे घर का इंटीरियर्स कैसा होना चाहिए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और उनकी नॉलेज के हिसाब से एक सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाई थी. दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग. बराबर. As you rightly said, Vastu is a set of guidelines. Understand one thing, Vastu is a way of life. है ना? अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है? अब पहले के ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ठीक है, और रात को अंधेरा हो जाता था, एंड यू नो दैट ऑफ कोर्स द विंड फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बराबर है? तो पहले के ज़माने में 800,000 साल पहले जब कंक्रीट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रात को अंधेरा हो जाता था, तब घर कच्चे घर थे, जिसके ऊपर वो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉज वगैरह से सब घर बनते थे, ठीक है? उस टाइम पे सीमेंट वगैरह, ब्रिक वर्क वगैरह तो कुछ था नहीं, जैसे अभी यहाँ पे ब्रिक्स वगैरह लगा के उस पर हम सीमेंट की कोटिंग करते, वैसे तो कुछ काम था नहीं. तो उस टाइम पे है ना, हवा वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती थी. उस टाइम पे गैस नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थे, चूल्हे नहीं थे, वो नॉर्मल चूल्हे होते थे, वो आग वाले चूल्हे जिसके नीचे आपने आग जलाई तो खाना बनता था. तो उस टाइम पे बोलते थे कि भाई वो वेस्ट में आपका किचन नहीं होना चाहिए. रीज़न कि हवा जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होगी और अगर आपका किचन वेस्ट में है तो चिंगारी उड़ेगी, घर पे लगेगी, और आपका घर स्ट्रॉ का है तो आपका घर पूरा जल जाएगा. ओके. तो वो एज ओल्ड कॉन्सेप्ट था वास्तु का कि भाई वेस्ट में किचन क्यों नहीं होना चाहिए, है ना? नाउ दैट कॉन्सेप्ट of course, see, we as channel partners deal with वास्तु compliant. वास्तु के और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, of course, साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, एंट्री, एग्जिट, 10 चीज़ें देखते हैं. एंड वास्तु एक ऐसी चीज़ है ना विच इज़ वेरी सब्जेक्टिव, लोगों पे डिपेंड करती है. आपका थॉट, आई नो ऑफ पीपल जो साउथ एंट्री घर नहीं लेते हैं, आई नो ऑफ पीपल जो बोलते हैं नहीं यार साउथ एग्जिट घर नहीं लेना चाहिए. ओके. है ना? तो बहुत सारे वास्तु के बहुत सारे पैरामीटर्स है. बट वास्तु, लाइक आई टोल्ड यू, इज एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट. उस टाइम पे ना इट वाज वैलिड बिकॉज उस टाइम पे कच्चे घर थे, वेस्ट में किचन नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए वेस्ट में किचन. आज की डेट में पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, दीवारें बन गई, आप वेस्ट में हो किचन, ईस्ट में हवा तो आ ही नहीं रही है, हवा आ रही है तो आप विंडो बंद कर दीजिए. है ना? बट स्टिल हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, एक ये होता है ना दैट इफ यू आर परचेसिंग अ प्रॉपर्टी 1.5-2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 50 लाख रुपया, व्हाटसोएवर मे बी द अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज योर हार्ड अर्न मनी. So still as Indians and still as middle class people, we don't want that 1% of doubt also in our head. Okay. So when we get Vastu compliant property and versus a non Vastu compliant property, we would always prefer कि भाई वो वास्तु compliant है ना, so रात की नींद चैन से आएगी कि मैं वास्तु compliant घर में रह रहा हूँ. बट आई थिंक डेवलपर्स भी ये सेंस करते हो गए, उनका जो लेआउट वगैरह है घर का, बिल्डिंग का, एक्सेट्रा, they know that people believe in vastu. You can't change the belief. You have to change yourself. तो अभी डेवलपर्स वो हिसाब से ही घर बनाते, वही हिसाब से घर बनाते हैं. ऑल द बिल्डिंग्स, मैक्सिमम बिल्डिंग्स दैट यू सी इन मुंबई और सी मे बी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर ऑल वास्तु कंप्लाइंट बिल्डिंग बिकॉज दे आर इवेंचुअली अंडरस्टैंड वन थिंग, डेवलपर को भी तो अपना माल बेचना है. आज अगर इफ यू आर नॉट मेकिंग, आज ऐसा होता है ना कस्टमर इज किंग, अगर आज आप उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से घर लेआउट बिल्डिंग नहीं बना रहे हो तो आपका माल नहीं बिकना है. ओके. हाँ, तो वो करने के लिए ऑल द डेवलपर्स एंड ऑल द बिग प्लेयर्स दैट यू सी इन मुंबई आर ऑल वास्तु कंप्लाइंट. ओके. एंड ऑल्सो वास्तु जैसा
as it's termed, I think it has 5 elements. I think people generally cover all 5 elements, developer भी, to ensure, जैसे you rightly said, कि उनको अपना भी माल बेचना ही है. I think once it was a selling point, way long back, जब भी इंटरनेट से इतना एक्सेस नहीं होता था, लोग अभी भी कई बात पे आ जाते थे, सुनी बात पे आते थे. तो I think information, I think it is not that relevant, is not a big selling point, I would say. No, I still feel, because see, again, like I said, no, कि अगर आज आप आपकी पूरी लाइफ की एज अ मिडिल क्लास इंसान अपनी लाइफ की पूरी जमा पूंजी घर में एक ऐसे एसेट में डाल रहे हो जहाँ पे रियल एस्टेट, अंडरस्टैंड माई फ्रेंड, इज द बिगेस्ट एसेट दैट अ मिडिल क्लास इंसान विल हैव In his lifetime. इन हिज लाइफ टाइम, Yeah. है ना. तो ये सारे फैक्टर्स आज भी इतने ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इफ यू आर इन्वेस्टिंग से मे बी एन एक्स अमाउंट जो आपकी लाइफ का 80-90% सेविंग वाला अमाउंट है, हाँ. तो आपको रात को एटलीस्ट एक चीज़ तो चाहिए, वो है चैन की नींद, Yes. है ना. तो वो चैन की नींद के लिए पीपल प्रेफर के नहीं यार, मैं मानूँ ना मानूँ, मेरी वाइफ मान रही है, मेरे घर वाले मान रहे हैं, या मेरे माँ बाप जिनकी थिंकिंग ओल्ड एज है एटलीस्ट वो तो मान रहे हैं ना वास्तु में, तो मैं वास्तु कंप्लेंट ही कर लेता हूँ. तो आज के डेट में भी ये बहुत बड़ा फैक्टर है. आपके एक्सपीरियंस में कभी कुछ हुआ है कि एक बायर, ठीक है, घर अच्छा लगा, डील क्लोज होने में है, बट फिर पंडित जी या तो उनके जो भी धार्मिक गुरु है उन्होंने बोल दिया यार ये वास्तु से बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइफ में, बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स है. लास्ट 14 साल की रियल एस्टेट जर्नी में मेरे ऐसी बहुत केसेस, ऐसी बहुत डील्स मैंने छूटते हुए देखी है जहाँ पे क्लाइंट ने टोकन दे के टोकन रिटर्न ले लिया है बिकॉज उनको उनके पंडित जी या किसी ने भी फॉर दैट रीज़न, और या उनकी वाइफ ने या उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया बोल के कि यार ये घर मैच नहीं कर रहा है, वॉशरूम के सामने किचन नहीं होना चाहिए. बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स. लाइक आई सेड, नो, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. हर इंसान का वास्तु का नज़रिया अलग होता है. Do you try to explain them or it's you give नहीं it यार, up? see again, being a channel partner, I've been a channel partner all my life, so मैं तो कोई डेवलपर हूँ नहीं. So for me, I cannot lose out on a client, Okay. है ना. So आज अगर मेरा एक क्लाइंट है, वो XYZ डेवलपर का घर नहीं ले रहा है बिकॉज उसको लगता है कि वो घर वास्तु कंप्लायंट नहीं है, Okay. so for me he is still a potential buyer. Okay. अगर मैं उसको वो डेवलपर नहीं तो किसी और डेवलपर में उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ बिठा के दे दूंगा. Okay. सो फॉर मी द क्लाइंट इज मोर इम्पोर्टेंट, Okay. है ना. तो आज की डेट में आई नेवर ट्राई, और मे बी माई टीम नेवर ट्राइज टू कन्विंस अ क्लाइंट. अगर क्लाइंट को नहीं जमा तो क्लाइंट के साथ खेलने से बेटर है आप क्लाइंट को जो जम रहा है वैसे और 4 प्रॉपर्टी बता दो, वो 4 में से एक ले लेगा. बट अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट वी आर इन दिस बिजनेस ऑफ ट्रस्ट. Okay. आज की डेट में कुछ भी करो, क्लाइंट का ट्रस्ट मत तोड़ो, है ना. और अगर आज वो ट्रांजैक्शन, मैं तो मेरी टीम को यही बोलता हूँ कि अगर ट्रांजैक्शन अपने थ्रू नहीं भी हो रहा है ना, हाँ. ना कोई क्लाइंट को गलत कमिटमेंट दो, ना कोई ऐसे सपने बताओ क्लाइंट को, बिकॉज आज की डेट में मेरा ये मानना है कि यार एक इन्वेस्टर या एक क्लाइंट अगर अपना लाइफ का इतना बड़ा चंक आपके बोलने पे और आपके गाइडेंस पे डाल रहा है ना, सो गिव हिम द राइट गाइडेंस. तो अभी वास्तु की बात तो we did and I think this was the most insightful vastu that will be on the internet. But second question mine is कि जो developers है, बड़े नामचीन developers, Lodha, Runwal I think, and other developers, when they make lavish luxurious properties, they have a lot of celebrity endorsement that they do. And not just for lavish properties, but other properties also, they have celebrity endorsements that they do. From a buyer standpoint, does celebrity endorsement, it helps them or it drives their decision in terms of buying those properties जो endorse होती है एक celebrity से, या तो कोई celebrity वहाँ आके रहना शुरू कर दिया. देखो, I'll tell you what happens in real estate. That is what my take on celebrity endorsement is. Celebrity endorsement है ना, gives a face to the brand. Okay. So I have seen Mr. Akshay Kumar do something for a developer. Yeah. है ना. Mr. Sunil Shetty is also promoting a developer. Yeah. Earlier there was Mr. Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan. They were also promoting a certain set of developer. Yeah. तो celebrity endorsement क्या करती है? Celebrity endorsement है ना, एक recognition देती है
वो ब्रांड को. Okay. So now what you start doing as a buyer is start affiliating that celebrity to that particular developer brand. है ना? But now come on this side of the table and think from a buyer point of view. आज आपका एक फेवरेट सेलिब्रिटी है जो एक पर्टिकुलर ब्रांड को एंडोर्स कर रहा है. Okay. ठीक है, अब आपको तो वो घर लेना है 1, 2, 3 करोड़ का. Yes. अब मान लीजिए कि अगर वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वीक है, Okay. उसका वॉल टूट रहा है बनने के बाद, Okay. है ना? सो डू यू स्टिल एज अ बायर थिंक दैट यू विल परचेज दैट प्रॉपर्टी जहाँ पे वो पर्टिकुलर डेवलपर का माल थोड़ा सबस्टैंडर्ड है? No. सिर्फ वो सेलिब्रिटी के कहने पे आप अपने 2-3 करोड़ पे डालोगे? नहीं, वो डालूंगा तो नहीं, बट सेलिब्रिटी के कहने पे मैं वहाँ वो डेवलपर के प्रोजेक्ट तक तो पहुँच जाऊँगा मैं. बस, तो यही चीज़ है कि अगर आप प्रोजेक्ट तक पहुंच गए हैं ना, तो वो सेलिब्रिटी ने अपना काम कर दिया. Okay. उसके बाद द बिगेस्ट एंडोर्समेंट फॉर एनी डेवलपर इज हिज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी. Okay. आज आप दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी लेके आ जाओ, और अगर आपका डिलीवरी टाइम पे नहीं है, आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज नॉट टॉप नॉच, मे बी इन दैट one particular project where the celebrity has endorsed that project, maybe you will be able to get business. Okay. But for the next 5-10 years, people will forget the celebrity and they will only remember your construction quality. But one more thing that I wanted to ask is that celebrity endorsement, luxurious property, ये सारे होते हैं HNI, high net worth individuals के लिए, you know. तो when you sell as a channel partner, when you discuss or when you meet an HNI individual who is an investor or a buyer, whoever it may be, जो conversation एक middle class के साथ होती है, एक middle class buyer के साथ होती है, एक first time buyer के साथ होती है, HNI के साथ similar conversations होती है, और they are more informed. What is the difference? No, see, I will tell you. No, you're right. See, आज आपने एक मैच खेली है हाँ. क्रिकेट हाँ. वर्सेस Sachin Tendulkar who's played 400 matches. हाँ. है ना? The confidence level, the experience is going to be different. Okay. So a normal buyer who has only purchased one property versus an investor who has tons of investment in real estate, 10, 15, 20 property है मुंबई में, of course the set of questions will differ. Okay. आज एक बंदे ने जिसने 20 प्रॉपर्टी खरीदी है, शायद he had the same set of doubts when he was purchasing his first property. Okay. But over the time, after interacting with so many developers, after interacting with so many channel partners, after putting in so much money and the research and everything into real estate, so that buyer has of course evolved. Okay. है ना? His thinking has evolved. The set of questions that he will ask you has evolved. Plus, मुझे तो बहुत मज़ा आती है, मतलब अगर मैं कोई इन्वेस्टर के साथ बैठा हो जिसको पूरे एक फ्लोर प्लेट लेना है, या 5 यूनिट लेनी है, या 4 यूनिट लेनी है, या 10 यूनिट की बात कहीं पे चल रही है, तो उनके सवाल ही अलग होते हैं. Okay. And I really like to sit with those kind of clientele base जहाँ पे मुझे उनसे कुछ सीखने मिलता है. Okay. But nevertheless, for us as channel partners, be it a buyer who purchases one property or a buyer who purchases 10 property, I treat everyone equally. Okay. My team treats everyone equally. So for me, customer is customer. है ना? फिर वो first time buyer हो या 10th time buyer ho, the set of questions don't matter. Okay. I think also the fact that HNI, as you said, इतना invest किया है, उनके questions more polished. And but एक question मेरा है कि HNI किसको consider किया, जिसकी capacity 5 करोड़ हो खरीदने की, 10 करोड़ हो, आपके हिसाब से कौन होता है HNI? मेरे हिसाब से HNI वो होता है जो मेरे को धंधा दे रहा है ना? अगर आज आई डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट द HNI इज, और किसको HNI बोलते हैं, 1000 करोड़ वाले को आप HNI बोलते हो या 500 करोड़ वाले को HNI बोलते हो, मेरे लिए वो 100 करोड़ वाला क्लाइंट भी HNI है जो 50 करोड़ रियल एस्टेट में डाल रहा है मेरे साथ, मेरे लिए वो HNI है. But now just to wrap up, what is the future of banking? Where do you see yourself banking next?
5 years or 3 years from अरे यार बैंक as a brand, we are a growth oriented organization, to say the least. है ना? For us, the vision of my CEO, the vision of the leadership team here, my directors and everyone, and of course me here, is to take the brand to the next level. We currently, in the last 11 years, 12 years, odd years, have opened up 18 offices across the globe. We have 8 offices only in the UAE. And we have 2 offices within the first 2 years only in Mumbai. okay And being a quite new company, new entrant in the market, 2 साल के अंदर 2 offices. So you may see us in 5-6 different cities, okay and with 5-6 different boutique offices, maybe a different team setup everywhere. So yeah, that's the plan for us for the next 5 years. किसको भी जॉब चाहिए तो आप पहुंच जाना इनके पास 100%. Please use this as an official medium. आप मुझे कनेक्ट कीजिए, मेरे लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए, और सेंड मी और रेज्यूमेज. ऑफ कोर्स वी आर ऑन द लुकआउट फॉर एक्सीलेंट टैलेंट, है ना? सो थ्रू दिस पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज दैट आज जो 125 की टीम है, यू विल सी अस more than 500 people in the next 2 years.